Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 29 June 2021 and I am teaching you chapter number 4 and name of the chapter is Plants Our Green Friends. So, let's do little recapitulation, student. What I explained you in the previous video. So, in the previous video, student, I am telling you about the stem. In the previous video, student, I am telling you about the stem. So, in the beginning of the chapter, I told you I draw a diagram of a plant, and after that I tell you there are two main systems in the plants, that is root system and the shoot system. Okay, root system is below the ground, roots are in the soil, and shoot system is above the ground. Is it clear? And what does the parts of the shoot system? That is stem, branches, leaves, buds, flower and fruits. Okay, so now student, when we are studying about the stem, so first question is arises, stem is the part of dash. Stem is the, because in the beginning I draw a diagram and I told you a plant is divided into system, root system and shoot system. Now when I am telling you about the stem, first thing is that stem is the part of which system, or you can say stem is the part of dash system. So answer is student shoot. Is it clear? So stem is the part of the shoot system. So, I explained you in the previous video that plant is divided into two parts, that is the root system and the shoot system. Now the question arises, stem is the part of which system? So answer is stem is the part of shoot system. Next question, what are the parts of stem? ठीक है, पहले तो ये हो गया कि stem is the part of which system, आंसर मिल गया shoot. Now the second question, this is a question. Now this question arises, what are the parts of a stem? So to understand this, I write the answer so that you can understand what are the parts of a stem. So branches, leaves, बर्ड्स, कलियों को बर्ड्स बोलते हैं, पहले कलियां आती हैं और जब वो ओपन होती हैं, देन फ्रॉम दैट you are able to see a beautiful flower. So branches, leaves, buds, flowers and fruits. So this is your answer. What are the parts of a stem? So branches, leaves, buds, flowers and fruits. Now the question arises, where
where is the stem? Now question arises, where is the stem? So answer is stem is the part of a plant. Stem is the part of a plant above the ground. Is it clear? One by one I do the recapitulation for your better understanding. Stem, we are studying stem. So stem is the part of this system. Answer is shoot system. You got it? Now second question, what are the parts of a stem? So branches, leaf, buds, flowers and fruit, these are the parts of a stem. ठीक है, स्टेम में ही ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस में लीव्स होते हैं, फ्लावर होगा, बर्ड्स होगा, फ्रूट होगा, तो ये सारे किससे अटैच हैं? स्टेम से अटैच हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, वेयर इज द स्टेम? स्टेम आपको देखने के लिए कहाँ मिलती है? वेयर टू सी द स्टेम? तो स्टेम इज द पार्ट ऑफ ए प्लांट अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड से अबव होता है, दैट इज स्टेम. फॉर एग्जाम्पल, many times I draw a diagram and show you also. For example, this is a root. For example, this is a root and this is stem. So what I have written? Branches. See, this is a branch of a stem. Then I have written leaves. So leaves are attached to the branches. This is branches. Okay, this is leaves attached to the branches. Then I have written birds. For example, what is this? This is a birds. कलियों को birds बोलते हैं. This is a birds. Okay, then I have written flowers. So this is a flower. This is a flower. And then fruit. So what is this? This is a fruit. So you see all these parts आर ऑफ ए स्टेम. ये सारे पार्ट्स किसके हैं बेटा? स्टेम के. ठीक है, आपने देखा ये सारे पार्ट्स किसके निकले बेटा? ये स्टेम के निकले. दैट इज फ्लावर, लीव्स, बर्ड्स, फ्रूट्स, ब्रांचेस, स्टेम एंड रूट. ठीक है, then very important thing I tell you, plants are divided into five groups. Plant divided into 5 groups. So I write here tree, shrubs, herbs, climbers and creepers. So what is the common thing in between tree and shrubs? Stem is hard. Stem is in shrubs, for example रोज प्लांट है,
ठीक है, हिबिस्कस प्लांट है, हीना प्लांट है, तो shrubs का क्या है, स्टेम इज हार्ड, stem is hard, not easily you can break the stem of these plants, but it is not thick. Here क्या होगा, stem is thick, stem is thick, hard and woody stem. ठीक है, थिक व्हाट डज इट मीन्स, ये बड़े पेड़ जो टॉल ट्रीज होते हैं इसके तने बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत थिक होते हैं, दैट इज द रीजन हम इसे स्टेम को क्या बोलेंगे, दैट इज द रीजन इन द केस ऑफ द बिग ट्रीज, बिग ट्रीज in the place of stem, in the place of stem we will say trunk. In big trees, in the place of stem we will say trunk of a tree. ठीक है, we will say trunk of a tree, not we say stem. And in the case of herbs, climbers and creeper, what is the common thing, they all have weak stem. हर्ब्स की स्टेम भी बहुत सॉफ्ट और वीक होती है, क्लाइंबर्स की भी सॉफ्ट और वीक होती है, इसीलिए तो उनको सपोर्ट चाहिए होता है, दे टेक द सपोर्ट ऑफ ए वॉल और सम अदर ट्री टू मूव अपवर्ड। इन द सेम मैनर क्रीपर्स की स्टेम भी बहुत वीक होती है और इनपे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल लगते हैं वो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, तो दैट इज द रीजन ये क्रीप कर जाते हैं, ग्राउंड पे ही स्प्रेड हो जाते हैं। सो व्हाट इज द कॉमन थिंग बिटवीन दिस, बिटवीन हर्ब्स, क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स, दे ऑल हैव वीक स्टेम, इन सब की स्टेम वीक होती है। ठीक है, सब की स्टेम भी हार्ड होती है, बट जो ट्री की स्टेम होगी दैट इज थिक, हार्ड एंड वुडी। ओके, सो ये 5 ग्रुप्स थे, स्टेम के ऊपर डिस्कस कर लिए, बिकॉज प्लांट्स डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स एंड व्हाट टाइप ऑफ स्टेम्स आर फाउंड इन दीज प्लांट वी हैव डिस्कस। ये जो 5 ग्रुप्स हैं इनमें कैसी स्टेम होती है ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आज हम लोग व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ए स्टेम। functions of stem। It is given, first one is it keeps the plant upright and straight। See, it keeps the plant होगा, it keeps the plant upright and straight। It
कीप्स द प्लांट अपराइट एंड स्ट्रेट। देखो रूट्स क्या है, जो कल मैंने ऑलरेडी फंक्शन ऑफ रूट में डिस्कस किया था। रूट्स क्या है, होल्ड करके रखती हैं प्लांट को, ठीक है। रूट्स ने प्लांट को होल्ड कर रखा है, क्योंकि रूट्स जो होती हैं सॉइल को बहुत मजबूती से पकड़ी होती हैं। दे बाइंड द सॉइल, इज इट क्लियर? दे बाइंड द सॉइल। सो रूट इज बिलो द सॉइल। रूट प्लांट का ऐसा पार्ट है जो सॉइल के अंदर है, वो ऊपर नहीं होता है, ठीक है। So it keeps the plant upright and straight. What does it mean? It means that stem support the plant above the ग्राउंड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ रूट्स ने बाइंड कर रखा है, तो स्टेम क्या कर रहा है? स्टेम सपोर्ट द प्लांट अबव द ग्राउंड। हाउ? अब तुम लोग सोचोगे कि कैसे सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज व्हाट इज द रीजन? रीजन इज स्टेम वियर्स। स्टेम में क्या क्या होता है? branches, leaves, birds, flowers and fruits, ठीक है। It keep the plant upright and straight. upright and straight उसने कैसे रखा है प्लांट को? क्योंकि रूट्स ने सॉइल को बाइंड कर रखा है, बहुत मजबूती से पकड़ रखा है। अब स्टेम क्या है? स्टेम सपोर्ट द प्लांट। ये प्लांट को सपोर्ट कर रहा है ना, क्योंकि ये पार्ट क्या है? अबव द ग्राउंड है। सपोर्ट कैसे कर रहा है तुम खुद सोचो। ये जितने भी पार्ट हैं, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड, फ्लावर एंड फ्रूट, ये सब किस में आते हैं बेटा? स्टेम में होते हैं। स्टेम में ब्रांचेस अटैच होती हैं, ब्रांचेस में लीव्स अटैच होती हैं, फिर फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं। सो सारी चीजों को किसने सपोर्ट करके रखा है? सारी चीजों को, ये जितने भी इतने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5, इन सारी चीजों को सपोर्ट कौन कर रहा है? दैट इज योर स्टेम। इज इट क्लियर? स्टेम इट कीप द प्लांट अपराइट एंड स्ट्रेट। हाउ? बिकॉज रूट बाइंड द सॉइल। एक ये हो गया। इट फिक्स द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड, मीन्स रूट्स ने बड़ी मजबूती से प्लांट को फिक्स कर दिया है, क्योंकि रूट्स ने क्या किया है? रूट्स किस में होती है? सॉइल में होती हैं। तो वो क्या है? सॉइल में रूट फिक्स हो जाती है, जिसके रीजन आपका जो स्टेम पोर्शन है जो अबव द ग्राउंड है वो अपराइट होता है, अबव होता है ग्राउंड से, और स्ट्रेट होता है, ठीक है। अनदर, अब स्टेम क्या कर रही है बेटा? प्लांट की हेल्प कैसे कर रही है? स्टेम क्या कर रही है? सपोर्ट द प्लांट अबव द ग्राउंड, उसको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये जितने भी पार्ट्स हैं, ब्रांचेस, लीव, बर्ड, फ्लावर एंड फ्रूट, ये सारे के सारे स्टेम के पार्ट हैं। तो अगर स्टेम नहीं होती तो ब्रांच कहाँ पे लगती? लीव्स कहाँ आती? बर्ड्स कहाँ होते? फ्लावर कहाँ होते? फ्रूट्स कहाँ होते? सो इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आ रही है बात बेटा समझ में कि स्टेम का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? क्योंकि उस बांध लो बीच में स्टेम है, सारी चीजें स्टेम में हैं, तो स्टेम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है इट कैरीज वाटर टू द लीव्स। देखो इट, ठीक है, इट कैरीज वाटर टू द लीव्स, ठीक है। इट कैरी वाटर टू द लीव्स, दिस इज द सेकेंड पॉइंट गिवन इन योर बुक। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ दिस इज पॉसिबल, क्योंकि मैंने तो अभी आप लोग को इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था
कि रूट अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। और अब यहां क्या मैंने लिखवा दिया, इट कैरीज वाटर टू द लीव्स। और जो कि मैंने बताया था कि ये रूट का फंक्शन है वाटर मिनरल ऑब्जर्व करने का, स्टेम का नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ए स्टेम, ये फंक्शन रूट का था। बट ऑन द बोर्ड मैंने लिखा इट कैरीज वाटर टू द लीव्स। सो अब क्वेश्चन अराइज हुआ, हाउ दिस इज पॉसिबल। सो इसका आंसर हुआ बेटा, इसका आंसर हुआ, स्टेप बाय स्टेप समझो, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इट कैरीज वाटर टू द लीव्स, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, स्टेम कैरीज वाटर टू द लीव्स फ्रॉम द रूट्स। इसका ये मीनिंग हुआ। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको समझना है, फ्रॉम द रूट्स। क्योंकि हमने आपको सेकेंड पॉइंट लिखवा दिया बेटा ऑन द बोर्ड कि इट कैरी वाटर टू द लीव्स, और मैंने आप लोग से बोला था ये रूट का फंक्शन है वाटर मिनरल कैरी करना। तो अब यहां मैंने स्टेम क्यों लिखवा दिया, उसका रीजन सुन लो। रूट का ही फंक्शन है वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करना, क्योंकि मिनरल कहाँ प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है। मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो उनको एब्सॉर्ब करना काम रूट का ही है। लेकिन रूट कहाँ है, मैंने क्या बोला था, रूट क्या है, ये रूट्स कहाँ है बेटा, एक मिनट जैसा रब करके दिखाना होगा क्योंकि रूट्स आ नहीं रहा है बोर्ड पे। अच्छा, डायरेक्टली ओरली डिस्कस कर लेते हैं। रूट्स कहाँ है, बिलो द ग्राउंड है। वो रूट सॉइल में होते हैं, सॉइल के अबव जो भी तुम्हें दिखता है वो तुम्हें दिखता है स्टेम। इसका मतलब रूट्स कहाँ है, बिलो द ग्राउंड है। अब जब रूट सॉइल में है तो लीव्स तक तो रूट्स नहीं जा सकते ना, क्योंकि रूट तो सॉइल में है, और लीव्स आपके कहाँ होती है, अबव द ग्राउंड होती है। और रूट्स कहाँ है, बिलो द ग्राउंड, मतलब सॉइल में है। तो रूट्स क्या करते हैं बेटा, दे ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल, और वो उसको पास कर देते हैं। किसको उन्होंने पास कर दिया, ये इसको पास कर दिया, आपके स्टेम को। अब यहां से समझो, ये जो बोला ना कि इट कैरी वाटर टू द लीव्स, हाउ दिस इज पॉसिबल, क्योंकि रूट्स होते हैं सॉइल में and they absorb water and mineral from the soil, and after that they pass these water and mineral to the stem, and then stem pass to the leaves. I hope अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। क्योंकि रूट सॉइल में होते हैं, वो वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करते हैं, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस दे पास इट टू द स्टेम। वो किसको दे देते हैं, उनका यहाँ पे रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि रूट ग्राउंड में होते हैं, तो वो सारा वाटर मिनरल स्टेम को दे देते हैं। अब स्टेम उसको वहां से लीव्स के पास लेके चला जाता है। तो इन दिस मैनर वाटर और मिनरल्स प्लांट के पार्ट्स में और लीव्स में कैसे जाता है, स्टेम से जाता है। प्लांट्स के पार्ट्स में और लीव्स में वाटर मिनरल कैसे जाता है, स्टेम में जाता है। व्हाट इज द रीजन, बिकॉज रूट absorb वाटर एंड मिनरल एंड देन दे गिव दिस टू द स्टेम। रूट वाटर मिनरल को ऑब्जर्व करते हैं और वो जमीन में होते हैं, इसलिए वो उस वाटर और मिनरल को किसको दे देते हैं, दे गिव वाटर एंड मिनरल, और यू कैन से दे पास वाटर एंड मिनरल टू द स्टेम, एंड देन स्टेम पास दिस वाटर एंड मिनरल टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। सो दिस इज द second point of your book. It carry water to the leaves, stem. How? तो stem carries water to the leaves from the roots. लिखा ना यहाँ हमने from the roots, because root ने वाटर मिनरल को किसको पास किया, स्टेम को, and then stem pass to the leaves. So this is the explanation of the second point which is given in your book.
Now, third function of the root. Third function of the root is given. Third function of the stem, which is given in your book, is it also carries the food made by the leaves to different parts. So this is one of the most important function of your stem, क्योंकि सारे पार्ट स्टेम से ही अटैच होते हैं. इवन देन आपका रूट भी जो है वो नीचे बेस पे किससे अटैच है? स्टेम से ही अटैच है. ठीक है, आपके रूट्स भी किससे अटैच हैं? वो भी स्टेम से ही अटैच हैं. इज इट क्लियर? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन इन योर बुक विच यू मस्ट अंडरस्टैंड. लीव्स. सो leaves prepare food. ठीक है, leaves prepare food. That is the reason they are also known as food factory. क्योंकि फैक्ट्री जो कारखाने होते हैं उसमें क्या होता है? चीजें बनती हैं. थिंग्स आर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री. एक फैक्ट्री में 200 कार्टून्स बने, तो फैक्ट्रीज में क्या होता है? मशीन्स होती हैं और वहां पे चीजें बनती हैं. ठीक है, so leaves prepare food. That is the reason they are also known as a food factory of plants. That is the reason they are also known as. This is a very important point. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं, जैसे आपके बुक में डिड यू नो देता है और उसे बॉक्स में कर देता है, तो मैं भी यहाँ करके मैं बॉक्स नहीं बनाता हूं, मैं थोड़ा स्टाइल में कर्व लाइन पुट्स कर देता हूं, उसको कर्व लाइन के बीच में डाल देता हूं. ठीक है, लीव्स प्रिपेयर फूड. दैट इज द रीजन दे आर आल्सो नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स. ठीक है, अब देखो, व्हेन द फूड इज प्रोड्यूस, जब फूड प्रोड्यूस होता है लीव्स में, सो प्लांट के साथ जैसे हमें भूख लगती है, हम फूड खाते हैं, तो उसकी एनर्जी, फूड तो माउथ से स्टमक में जाता है, सो लास्ट में जो होती है उसकी एनर्जी हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को मिलती है, ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इसीलिए तो हम डिफरेंट वर्क करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. इन द सेम मैनर अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स दे आल्सो नीड एनर्जी. उनको भी तो एनर्जी चाहिए, उनको भी तो फूड चाहिए. ठीक है, so this prepare food which is prepared by the leaves, this food is passes to all parts of the plant with the help of a stem. लिखा है ना इसमें, it also carries the food made by the leaves to different parts. क्योंकि प्लांट्स के भी जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, सो हम फूड खाते हैं तो उससे जो एनर्जी हमें मिलती है वो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में जाती है. तभी तो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बहुत से वर्क करते हैं. आप स्टडी भी करते होगे, आप प्ले ग्राउंड में जाके आउटडोर गेम्स खेलते होगे, इंडोर गेम्स खेलते होगे, रनिंग करते हो, वॉकिंग करते हो. फॉर ऑल दीज थिंग वी नीड एनर्जी एंड दिस वी गेट फ्रॉम द फूड वी ईट. इन द सेम मैनर द फूड विच इज प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स, दैट इज आल्सो कैरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. Okay, thank you. We will continue this in the next video, student.